and ether. तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स या 3 फंक्शनल ग्रुप्स क्लब है. Alcohol, we have phenol, and we have ether, right? Till last year say we don't know the situation right now what weightage this topic carries, but till last year the weightage of this topic was 4 to 6 marks for your board exam. Even this topic comes for CET competitive exam में it comes for 2 to 3 marks. 2 से 3 questions ये topic से expected है. Clear? Can anyone tell me what is the function? We have studied the functional group in 11th standard. Some basic concepts of organic chemistry में आपको different type of functional group पढ़ाया गया था. Right? Hydrocarbons, उसके बाद hydrocarbons था alkane, alkene, alkyne. Can anyone tell me what is the functional group of alcohol? Yes, one by one you can unmute my OH. OH. Okay, fine. Very good. The functional group I know in alcohol is OH, right? What is the name? आप इसको नाम क्या बोलते हो? OH group को आप क्या बोलते हो? Which group it is? Hydroxyl group. Known as hydroxyl group. Okay. Now tell me what is the functional group in phenol? Phenol में क्या functional group है? Yes. एक cyclohexane kind structure, उसमें बीच में एक circle and OH. The functional group. I'm not asking you example or general representation. Just let me know the functional group of phenol. Phenol में क्या functional group है? Alcohol. OH. You can't say it alcohol. It is OH, right? Even hydroxyl group. बराबर? And what about ether? See, you have studied. जब तक आपको functional groups पता नहीं है, तो आगे जाके कुछ मतलब ही नहीं है. Basically, organic में आपका functional group should be very much clear, right? So, what is the functional group in ether? ROR. That is the general representation. ROR is the general dash O dash. right? See, as far as organic chemistry is concerned, even last year I used to say कि आपको 4 valency पता होना ही चाहिए. What is the valency of carbon, which is the hero of organic chemistry? उसका valency क्या है? 4. 4. Good. What about nitrogen? 3. Very good. What about oxygen? 2. What about hydrogen? 1. Understood. तो आपको 4 वैलेंसीज याद रखना है. 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर ऑक्सीजन, 3 फॉर नाइट्रोजन एंड 4 फॉर कार्बन. तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखते हो तो ऑक्सीजन के साथ 2 वैलेंसीज कंपल्सरी यू आर सपोज्ड टू पुट. इट इज डाइवैलेंट इन नेचर. इज इट क्लियर? नाउ टेल मी, सो अगर अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, फिनॉल में भी OH ग्रुप है, so what is the difference between alcohol and phenol then? What do you think? What is the difference between the two? Phenol aromatic Chain, straight chain. cyclic Saturated, unsaturated ये फैक्ट बाद में आएगा. इन अल्कोहल, राइट? अल्कोहल में ये जो दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो कॉमन है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, बट इन दिस केस द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू विच ग्रुप? हमेशा द R is alkyl group. Is it clear? So in alcohol the OH group is attached to alkyl group, while in phenol the OH group is attached to which group? aryl group. Aryl group. मतलब बेंजीन रिंग रहेगा. Is it clear? aromatic compound को जब भी OH group, बेंजीन रिंग को OH group attach रहेगा, at that time we are going to call that compound as phenol. So अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है what are alcohols for 1 mark, so what you are going to write down? The compound. See students, see to it, not only screenshot but आप लिख भी रहे हो simultaneously. See to it, you are sitting with pen and book. मतलब examples अगर दिया जाए तो आपको solve करना है simultaneously. So what are alcohols? A compound in which OH group. What does that OH groups means? Hydroxyl group, right, is attached to
is attached to alkyl group, at that time I'm going to call that compound as alcohol. Is it clear? Can anyone tell me the another definition? अलग भी definition हो सकता है. If I'm taking you example, यहाँ पे मैंने example लिया, समझो CH3OH. इसमें basic compound क्या रहेगा? What is the base of CH3OH? Methane. Methyl. Methyl नहीं. See, there is a difference between alkane and alkyl, right? Methane बोला तो formula क्या बनेगा? CH4, right? CH4. हाँ. If I'm telling CH3, तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो it becomes methyl. So there is a difference between alkane and alkyne. alkyl में एक हाइड्रोजन ग्रुप कम होगा. तो यहाँ पे मुझे पता था मेरा बेस कंपाउंड इज मीथेन. तो मैंने मीथेन में क्या किया? What I have done for getting this compound? एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करके एक OH लगा दिया. हाइड्रोजन रिमूव Yes. किया है. So you can say कि the compounds in which one hydrogen of an hydrocarbon, these are hydrocarbons, right? The compounds containing carbon and hydrogen. When one hydrogen of an hydrocarbon, one or more, see ऐसे जरूरी नहीं अल्कोहल बोला मतलब सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो. We are going to see the example जहाँ पे 2 OH रहेगा, 3 OH रहेगा. तो the compound या the hydrocarbons in which one or more hydrogen atom of an hydrocarbon is replaced by hydroxyl group, then the compound can be called as alcohol. तो दोनों definition सबको clear है? Ma'am, can you repeat the second definition? Actually, network error की वजह से exit हो गया था. Okay, it's fine. I will repeat it for you. The compounds in which the same, यही sentence चालू करना है. The compounds in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon Okay. is replaced by which group? Hydroxyl group. Then the compound obtained is known as alcohol. तो दोनों definition हो सकता है. ये हमेशा see ये difference है. R हमेशा aliphatic ही होगा. Aliphatic open chain या closed chain compound हो सकता है. R will be always for phenol. It is aromatic benzene ring की. तो ये दो definitions clear होना चाहिए. The compounds in which OH group is attached to alkyl group, then we are going to call that compound as alcohol. या दूसरा definition, when one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon is replaced by OH group, that is hydroxyl group, the compound obtained is known as alcohol. Can anyone tell me on this basis इसका definition क्या आएगा phenol का? Compound in which OH group is attached to aryl group is called. Aryl group. Very good. On the same basis आप बोल सकते हो the compound in which OH group is attached to aryl group, that is benzene ring. Then the compound is known as phenol. Is it clear? या दूसरा definition on this basis आप क्या बोलते हैं? बेंजीन को आप कैसे लिखते हो? We put it as benzene. अपन हाइड्रोजन कभी रिप्रेजेंट करते नहीं है, but in this case just for showing you I am writing the hydrogens. यहाँ पे C, जो भी C रहता है यहाँ पे सभी के साथ हाइड्रोजन्स होता है, right? So अभी अगर फिनॉल ऑब्टेन करना है तो आप क्या करोगे? What you are going to do for obtaining the phenol? वो एक हाइड्रोजन निकाल के OH. हाँ, तो when one hydrogen atom of an benzene ring is replaced by which group? OH group. हाँ, then the compound obtained is known as phenol. फिर स्ट्रक्चर बाकी का सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन के जगह पे OH आएगा. Is it clear? अल्कोहल और फिनॉल का आपको डिफरेंस समझ में आ गया? Repeat, ma'am. Okay, fine. What thing I am supposed to repeat it out? आपको क्या नहीं समझा मुझे वो बोलो. मैम वही जो बेंजीन रिंग के बाद आपने बोला. हाँ, तो आपको ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स देख के क्या लग रहा है आप बताओ. चलो, सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा. अभी यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स मेंशन किया है, तो आपका ऑब्जर्वेशन से आपको क्या लगता है? चलो बताओ.
What you observe here in both the structure, what is the difference? हाँ मैम, अंडरस्टूड. इतना जल्दी understood हो गया? Let me know ना. या मैम, इधर हमने एक H को रिप्लेस करके OH इंट्रोड्यूस किया. Okay, तो आपने क्या किया? बेंजीन का when one hydrogen atom of a benzene ring Yes. is replaced by hydroxyl group, the compound obtained is known as Phenol. phenol. Very good. Clear? Yes ma'am. हेलो मिस. Yes. मैम सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स आर रिमूव, सो वी हाँ. कैन ऐड वन और मोर हाइड्रोक्सी आयंस आल्सो. Yeah, we can add, but तभी आप उसको phenol नहीं बोल सकते हो, वो अलग कंपाउंड हो जाएगा. See, if I'm giving you this example, चलो अभी यहाँ पे मैंने भी लो एक रिंग रहेगा तो we call it as benzene, right? अगर यहाँ पे मैंने 2 रिंग ड्रॉ किया, can you tell me the name of this compound? naphthalene. Very Naphthalene. good. Naphthalene, right? Okay. क्या डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में? मिस कुछ नहीं है, बस वो आयुपैक नेम अलग होगा. पोजीशन अलग है. Position I'm not of- asking you any kind of IUPAC name. I'm just asking you आपको ऑब्जर्वेशन के बाद क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों OH? Position of introducing का OH is position different. difference. Position of OH group is different, right? In this case, first पे attach है. In this case, Second. Second पे. so अभी इसको आप phenol बोल सकते हो क्या? Can I call it as phenol? No. No. Yes. No, because we know in phenol only one hydrogen atom is replaced by one OH group. Clear? यहाँ पे इसका phenol नहीं होगा, but this compound is known as जब भी first position पे, see by default naphthalene में ये वाला position ही first रहेगा, ये वाला position second रहेगा, third रहेगा, fourth रहेगा. तो जब भी first position पे OH, जी ये IUPAC अकॉर्डिंग अपन नहीं जा रहे, IUPAC अकॉर्डिंग जाओगे तो जो कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है तो उसको आपको फर्स्ट बोलना पड़ेगा, राइट? बट फॉर कॉमन नेम यहाँ पे इसका कॉमन नेम कैसा? इन केस ऑफ नैफ्थलीन ये वाला कार्बन ही आपको फर्स्ट पकड़ना है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप हो या नहीं हो. तो ये कार्बन को हमेशा बोला जाता है अल्फा कार्बन, सेकेंड कार्बन इज बीटा कार्बन, थर्ड गैमा कार्बन एंड सो ऑन. तो इसका नाम क्या बनेगा? अभी ये नैफ्थलीन है क्या? Naphthanol होगा ना. Yes, नहीं. naphthol. So we call it as alpha Naphthol. naphthol. Is it clear? In the same way, इसका नाम बता पाओगे? Beta naphthol. Beta naphthol. Very good. This will be beta. ये पोजीशन अल्फा ही रहेगा, ऐसा नहीं अभी उसको अल्फा बोलना है. ये पोजीशन बीटा ही Ma'am, रहेगा. if we are simultaneously attaching OH groups to alpha and beta, then उसका नाम अलग हो जाएगा डियर. ये अभी अपन ने पहला सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स वी आर सीइंग. okay, miss. इज इट क्लियर? फिर उसका IUPAC कॉमन नेम नहीं आएगा, फिर आपको उसका IUPAC नेम डिराइव करना पड़ेगा. We can call it as naphthalene 1,2 diol. Clear? Hello? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1,2 diol, फिर उसका IUPAC नेम ये होते जाएगा. And one thing I forgot, see यहाँ पे इसका common name, we are going to study nomenclature part, common name as well as IUPAC, but since ये आपने already HDA हो चुका है, तो we know CH group stands for methyl, बराबर, and OH stands for alcohol. Is it clear? इसमें आपको क्या याद रखना है? मिथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम है कार्बिनॉल. What is the another name for methyl alcohol? Yes. Carbinol. Carbinol. You're supposed to note it down. MCQs में sometimes they ask the carbinol on reacting with, so they won't give you the name as methyl alcohol or methanol. Methanol उसका IUPAC name हो गया, but sometimes they give it as carbinol. So you should understand it कि carbinol is nothing but methyl alcohol only. Is it clear? Same way, the another name for phenol is carbolic acid. Which acid? See, sometimes in the board the question comes carbolic acid define.
बट बच्चों को लगता है मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया रहेगा एंड दैट दे अज्यूम इट टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कार्बोलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक. कार्बोक्सिलिक में फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH. OH. Yeah, COOH, right? But in carbolic acid, it is OH. That is the another name for phenol is carbolic acid. So define carbolic acid आ गया, तो you're supposed to give the definition of phenol only. Is it clear? Yeah, ma'am. So we will move further. अभी यहाँ पे भी नो, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है O. अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन उसको किया जाए तो we get as ROR. बराबर? This R, I'm placing it as R dash so that confusion should be avoided. ये R और R dash same भी हो सकता है, different भी हो सकता है, ये aliphatic भी हो सकता है, ये aromatic भी हो सकता है. So what are ethers? The compound in which the oxygen atom is bonded to you can say alkyl groups or aryl group. See, अगर मैंने हाइड्रोकार्बन के वे से अभी आपको इसका डेफिनेशन पूछा, ईथर का दूसरा डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोकार्बन रिलेटेड, अल्केन रिलेटेड, अल्केन का रिप्रेजेंटेशन RH है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RH एंड ROR? क्या हो गया वो केस में? H is Ma'am, replaced दो with O. हाँ, Ma'am, H is replaced with O. very good. We are replacing H of hydrocarbon with not O, but which group? In place of H कौन सा ग्रुप आ रहा है? Which group we are placing OR? Ether. बराबर? हाँ, ईथर नहीं, we can't call it as ether. R के जगह पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? H के जगह पे we are placing it as OR group. OR, right? We know R stands for which group? Alkyl. बराबर ना? RH मतलब अल्केन होता है, R मतलब अल्काइल होता है. In the same way, OR stands for which group? अराइल. No dear, aryl तो aromatic ring हो गया. यहाँ पे aromatic ring कहाँ पे आ गया? हाँ. alkox. Very good. It is alkoxy group. ये याद रखना है. So we can say the another definition of ether as the compounds in which the hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by alkoxy group. The hydrogen atom of an hydrocarbon is replaced by which group? Alkoxy. ये याद रखना है क्योंकि ये nomenclature में बहुत helpful रहेगा. OR stands for alkoxy. If I'm asking you the formula of methoxy, क्या आएगा formula methoxy का? CH3. हाँ? Only methoxy I'm asking you. हाँ? CH3O. CH3O CH3. CH3O CH3 अगर आप बोलते हो तो वो तो Methoxymethen. नहीं, I'm asking you methoxy मतलब कौन सा ग्रुप होगा? CH3OR. हाँ, या OCH3 वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा बिकॉज वी आर अटैचिंग RO नहीं अटैच करते अपन RO अटैच कर रहे हैं क्या? R बीच में आ गया तो उसका वैलेंसी ये हो जाएगा. अपन O से अटैचमेंट दे रहे हैं तो यू कैन कॉल इट एज OCH3. इज इट क्लियर? इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथॉक्सी? OC2H5. That is ethoxy. Clear? Hello मिस. बोलो. Yes, आपने जो बोला अभी मिथॉक्सी, उसमें तो एक ही साइड में बस वो R ग्रुप अटैच हो रहा है ना? नहीं, आई एम आस्किंग यू जस्ट द नेम. मतलब मिथॉक्सी का फॉर्मूला पूछा तो OCH3 ना. ओके. हाँ, मैं पूरा नाम नहीं पूछ रही हूँ. मतलब आई हैव नॉट गिवन यू द स्ट्रक्चर एंड नॉट आस्किंग यू द कॉमन नेम्स और IUPAC नेम. आई एम जस्ट आस्किंग यू अगर मैंने मिथॉक्सी आ गया किधर भी आपको दिखा
तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? OCH3. इथॉक्सी दिखा तो OC2H5. क्लियर? हाँ मिस। एक्सक्यूज मी मिस। हाँ, मिस आप अपना ये चेंज करो ना, मतलब स्क्रीन रोटेट करो ना मिस प्लीज। screen rotate in the sense. मिस मिस स्क्रीन रोटेट करो ना। ओरिएंटेशन बोल रहे हो? लैंडस्केप दिख रहा है। मोबाइल या तो स्क्रीन। ओरिएंटेशन, वो मतलब हमें लैंडस्केप दिख रहा है। Okay, landscape दिख रहा है. See, I'm totally unaware about this app. You should help me out from where I will get that all the other. ये मैम जस्ट आप मोबाइल का रोटेशन चेंज कर दो 180 डिग्री से। 90 डिग्री। हाँ सॉरी 90 डिग्री। okay, so I should do the rotation 90 degree वाला. हाँ मिस, मतलब फोन सीधा है ना, उसको गेमिंग खेलते हो कैसे टिल्ट कर देते हैं वैसे। Okay, तो आपको ये बोलना है कि I should place it horizontally since हाँ. it is अभी okay. हाँ हाँ बराबर। तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करो because already I have made the arrangement here. अगर मैंने वो सब सेटअप घुमा दिया ना तो it will be very difficult for me to adjust it out. But I will It's try. okay, ma'am. चलेगा चलेगा आज मैम। चलेगा। चला के लेना पड़ेगा. सॉरी. ओके। दिख रहा है ना आपको? क्लियरिटी है ना? हाँ क्लैरिटी। हाँ मैम। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? आई विल वेट फॉर सम, मतलब आपको दिखना चाहिए करके. आई नो थोड़ा रहेगा डिफिकल्टीज बट एडजस्ट इट आउट. क्लियर? ओके, नाउ मूविंग फर्दर. सी यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर? Alcohol. यस, अल्कोहल. अबाउट दिस, Ether. ether, राइट? अगर मैंने पूछा कि गिव मी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस स्ट्रक्चर. सी ये तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया. इसका मॉलिक्यूलर या कंडेंस्ड फॉर्मूला मैंने पूछा तो क्या आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H6O5OH। कितना है? C2H6O। अगर में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोलना होता है तो यहाँ पे सी कितना दिखाई दे रहा है पूरे स्ट्रक्चर में? 2. C2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन एटम 6। 3 plus 2 plus 1, that is 6, right? So H6. And what about oxygen? 1. Okay. Okay, I'm asking you the molecular formula of this structure. Ether का बोलो. इसका molecular formula दो. The same है, C2H6O। Total कितना है? It is C2. O, right? तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों एग्जाम्पल में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। वेरी गुड. मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल रहा है बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. सी लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द टॉपिक नेम. कैन एनीवन टेल मी व्हाट द आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म बराबर. तो आइसोमेरिज्म मतलब द कंपाउंड्स हैविंग same structural or same molecular formula? molecular formula. A compound having same molecular formula but क्या condition होना चाहिए? Different functional groups. Structural formula are known as isomers and the property is known as isomerism, right? In the same way, we have seen the classification of isomerism. कौन सा दो classification आपने study किया था? मैंने बताया था चार्ट में. Structural and stereo। Structural and stereo. Stereo, right? I guess stereo में भी आपने okay. Structural में कौन सा आपने देखा था? Structural में कौन सा type देखा था? Chain isomerism, position isomerism, And the last one was functional. चेन मतलब मैंने बताया था कि चेन में एक स्ट्रेट चेन होना चाहिए तो दूसरा कंपल्सरी ब्रांच होना चाहिए, तभी जाके उनको अपन चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं. पोजीशन में मैंने क्या बोला था? फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा. देयर वोंट बी एनी चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप. दे विल बी हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप but
क्या होगा उनका पोजीशन डिफरेंट होगा. मतलब अगर ब्यूटेन 1 ऑल है तो ब्यूटेन 1 ऑल का पोजीशन आइसोमर कौन बनेगा? ब्यूटेन. All. टू ऑल मतलब सिर्फ मैंने Two OH all. का पोजीशन चेंज किया था. ब्यूटेन 1 ऑल में फर्स्ट कार्बन को अटैच था OH ग्रुप, ब्यूटेन 2 ऑल में सेकंड कार्बन को. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है. बट इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म व्हाट आई हैव सेड, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट Functional groups. functional group. The functional group should be different, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? What is the difference? यहाँ पे इनका molecular formula जो है वो same है, but Same इनका है. functional group is different. So they are which isomerism? Which isomers? Functional isomers. हमें in CET the question may come कि alcohol is the functional isomer of, तो आप क्या अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर. तो आपका आंसर क्या होगा? Ether. ईथर. इसको अगर जनरल फॉर्मूला से जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो इट कम्स एज CnH2n + 2O. इसका भी अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो CnH2n + 2O ही आएगा. इज इट क्लियर? तो आपको फटाफट आना चाहिए. अगर मैंने इथाइल अल्कोहल बोला है और मैंने आपको पूछा कि इथाइल अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन रहेगा, तो इट शुड बी विच ईथर? डाइमिथाइल ईथर. dimethyl ether. Is it clear? If I am asking you, tell me the functional isomer of propanol या प्रोपाइल अल्कोहल का functional isomer बताओ. Ethyl methyl ether. Methyl इथाइल मिथाइल ether. ईथर. तुरंत आना चाहिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डाल के भी आपको पता चलेगा या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से भी. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आने का चांसेस कि फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर का भी पूछा तो फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर इज अल्कोहल, या अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर पूछा तो इट इज ईथर. तो आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया? एनी डाउट? अभी तक वी आर स्टिल ऑन द, बोलते ना, टॉपिक के नेम पे ही है. अल्कोहल देख रहे हैं, फिर फिनॉल देख रहे हैं और फिर ईथर देख रहे हैं. एनी डाउट इन दिस? मैम अभी जो लास्ट स्टेटमेंट आपने बताया ना, अल्कोहल इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईथर ईथर. ओके. एंड वाइस वर्सा. ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन रहेगा? अल्कोहल. अल्कोहल. तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर देने दो, मतलब अल्कोहल का और उसका पूछा जाए कि ईथर, तो आपको तुरंत ड्रॉ करके आना चाहिए. This part you are supposed to remember. फंक्शनल आइसोमर ना मैम? या फंक्शनल आइसोमर. देन पोजीशन तो हो ही नहीं सकता है. हाँ फंक्शनल मैम. ही. पोजीशन में क्या डिफरेंस था कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था. बराबर. चेन में Yes. एक chain तो दूसरा ब्रांच. मिस वो एक बार ऊपर का दिखाओ ना पेज. Okay, fine. Just take it down, then we'll move further for classification. थोड़ा मैम और नीचे करो ना बुक. अभी आपको चैप्टर का नेम हेलो मिस. बोलो. मैम वो पूरा पेज नहीं आ पाएगा, ऐसे दिखाओ ना, पूरा पेज आ जाएगी में. अभी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, एक मिनट रुक जाओ. हाँ मिस. Okay, fine. मैम आप म्यूट हो. ये फिनॉल का डेफिनेशन ऐसी है ना, when one hydrogen atom of from benzene ring is replaced Yes, by OH. compound in which one आपको specify करना पड़ेगा. When one hydrogen atom of a benzene ring is replaced by OH group, then the compound obtained is known as phenol.
Completed? Yes, ma'am. मैम फिनॉल का एक ही डेफिनेशन है ना? Yes, only one Okay. definition. Hello. Actually, I'm not able to hear you properly, dear. आपका एक को सुनाई दे रहा है मुझे. Hello. हाँ, हेलो मैम, बोलो. यहाँ I'm पे ना ऐसे ही रख talk slowly. बोलो. Hello. सकते हो क्या? किसी और को ये समझा क्या? I'm not. क्रिस्टल टेक्स्ट मैम वो करना like वो बोल रही है कि ऐसे ही आप रख के ऐसे पढ़ा ही रख सकते के हो क्या? पढ़ाओ। Okay, ऐसे ही रख के पढ़ाना है. हाँ वो बुक का. बट अभी आपको नोट डाउन करने के लिए तो ठीक है ना. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई इट आउट ऐसा रखने के लिए. हाँ मैम मैम, no चलेगा. ओके, तो इतना नोट डाउन किया आपने. यस मैम. So we'll move further. The next topic which we are going to start is classification. Of alcohols. See, if you are lucky enough, अभी पता भी नहीं है बोर्ड्स होने वाला है नहीं होने वाला है, सब chaos है बहुत बड़ा. But in the exam sometimes the question comes for 2 to 3 marks. और अल्कोहल का अगर आ गया तो बहुत ही easy है for differentiating या for classifying the alcohols. Clear? यस. Thank you. See students, always remember ना, in the boards most of the time what you do कि आप सिर्फ कभी कभी क्या करते हो, घाई में रहते हो तो आप फटाफट ऐसा सी डाल देते हो, OH डाल देते हो and you keep it as it is. But this is totally wrong. In the boards हमेशा इंस्ट्रक्शंस हम लोग को रहता है कि ऑलवेज अगर स्टूडेंट्स ने हाइड्रोजन पुट, आई नो इट इज अंडरस्टूड, अगर बच्चा ये स्ट्रक्चर दे रहा है मतलब उसको समझ में आ गया है कि क्या एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट. बट समटाइम्स इन अ हरी ही फॉरगॉट टू पुट्स द हाइड्रोजन एटम्स. बट अगर हाइड्रोजन एटम्स नहीं पुट ऑन किया तो डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर को रॉन्ग किया जाएगा और 0 देने के लिए बोला. तो ऑलवेज सी टू इट यू आर पुटिंग हाइड्रोजन एटम्स. Okay, structure wise क्या आपको see if you are observing properly all the 4 structures, what difference you can make it out? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? साइक्लिक है Number फिर of लीनियर है. OH. साइक्लिक और लीनियर कहाँ से आ गया डियर? साइक्लिक मतलब क्या? पहला मुझे ये बताओ, आपका कंसेप्ट क्लियर करो. चलो, नहीं है साइक्लिक मैम, मतलब क्या सॉरी होता है? सॉरी मैम, नहीं है. मैं थोड़ा इसकी वजह से दिखा मैम. नहीं, इट्स ओके. सी डाउट्स तो पूछना ही चाहिए. You have full rights to ask me doubts, right? Number क्लियर of भी करना चाहिए. Number of number of hydroxyl carbon नंबर ऑफ और, आइटम्स डिफरेंट है. OH पढ़ रहे हैं. क्या क्या डिफरेंट है? number of OH group. number OH of bonds. Number of OH bonds या we can say OH group, hydroxyl group. If you observe in the first case कितना OH group मैंने attach किया है? 1 एक ही है. 1 एक ही है, 1, right? In the second structure 2 2 2, very good, hydroxyl group 2. Third structure 3 3 3, और in the last structure 6 6
groups I have Miss, placed. अल्काइल ग्रुप भी तो ज्यादा हो रहा है ना? Hydroxyl group. अल्काइल ग्रुप्स का अपन को नहीं देखना है. वी आर नॉट सीइंग हियर अल्काइल ग्रुप्स. मैंने हेडिंग क्या दिया है? अल्कोहल्स. किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन? अल्कोहल्स का. हाँ, तो कौन सा आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि OH ग्रुप कितना बढ़ रहा है, राइट? द क्वांटिटी ऑफ OH ग्रुप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो आपको देखना है. क्लियर? So in the first case, I have seen कि it is single. जब भी single होता है, we call that compound as monohydric alcohol. Is it clear? जब भी एक OH group आपको कोई भी structure में दिखाई दिया, तो you're going to call that compound as monohydric alcohol. Clear? And tell me the common name of this compound. Ethanol. Ethanol. Ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Alcohol is ethyl alcohol. Okay. In the second structure, what do you observe? How many alcohol groups are there? Two. Two, right? तो usually जब भी दो रहता है, कोई भी quantity दो में होता है, तो we call it as di. Since OH group है इसलिए hydric, dihydric alcohol. Is it clear? Monohydric मतलब single alcohol रहेगा only, या in the other sense we can say when one hydrogen, अगर exam में आया, what are monohydric alcohols? So what you are going to say? Compounds which have one Compound with single OH. Only group. one OH group attached. Yeah, we can say the compounds in which one hydrogen atom of an alkane or hydrocarbon is replaced by one hydroxy group. Then the compound obtained is known as monohydric alcohol. Is it clear? Dihydric, the definition will go on. When two hydrogen atoms is replaced by two hydroxyl group, the compound obtained is known as dihydric. Clear? Miss, मोनोहाइड्रिक में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते if one OH group is attached to one alkyl group. One alkyl. थोड़ा वो साउंड करने में कि one OH group is attached to one alkyl group. Logically देखा जाए तो right है, but usually whenever they are asking you what are monohydric, तो एक sentence form में होना चाहिए. Definition repeat करो ना मैम मोनोहाइड्रिक का. हाँ, I will write it down so it will be easy for you. मिस OH ग्रुप कोई भी मेन कंपाउंड में एक ही बार अटैच हुआ तो उस पूरे कंपाउंड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मोनोहाइड्रिक बराबर, क्योंकि ये एक ही OH को अपन ने मोनो बोला है ना, एक ही OH ग्रुप है, वो किधर भी अटैच हो सकता है. ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ इथाइल अल्कोहल. इफ आई एम टेकिंग, एक मिनट, फर्स्ट आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन, देन विल सी द अनदर एग्जांपल. यहाँ पे स्पेसिफाई जरूर करना है. वन हाइड्रोजन एटम of a hydrocarbon is replaced by one hydroxy group या OH group. Then the compound obtained is known as monohydric alcohol. See, even if I'm giving you this example, यहाँ पे कितना OH ग्रुप दिखाई दे रहा है ये एग्जाम्पल में? वन. एक. So whether you're going to call it as dihydric, monohydric. No. यहाँ पे सिर्फ आपको OH ही देखना है, कितने क्वांटिटी में है OH, एक ही है. So even this is an example of monohydric alcohol. Is it clear? Yes. Okay, so second one, in the second structure, how many OH groups are there? Two. Okay, right? So since we have two OH groups, so we are going to call that compound as dihydric alcohol. Is it clear? When two OH groups are present in the compound obtained is known as dihydric alcohol. See, usually we call it as alcohol, right? यहाँ पे कितना OH group है इस
as far as I know, last year we have studied nomenclature में मैंने बताया था कि alkane का E is replaced by all, right? Nomenclature again we are going to study, no doubt. But इधर कितना OH group है? 2. 2. So we can even call this compound as diol. बराबर? Yes, ma'am. Yes. Since we have two OH, अगर आप properly observe करते हो तो ये दो OH group है. मैंने कैसे अटैच किया है? I have attached it to adjacent carbon atom. आपको डिफरेंस समझ में आता है ना? Adjacent मतलब क्या होता है? Exactly बाजू वाला. Besides each other. हाँ, एक दूसरे के बाजू बाजू में. ऐसा नहीं है वो एक छोड़ के दूसरा रहेगा तो आप उसको जाके adjacent बोलोगे. Adjacent मतलब exactly एक दूसरे के आजू बाजू में. Clear? तो जब भी OH adjacent carbon पे अटैच रहेगा, we call that compound as glycol. क्या बोला जाता है वो कंपाउंड को? Glycol. Is it clear? So what is glycol? The compounds in which the hydroxy group is attached to two adjacent carbon atoms. Then the compound obtained is known as glycol. Is it clear? Yes. Yes. Okay, fine. Thank you. So tell me, मैंने last इसमें okay, ऊपर लिखा है इसका IUPAC नेम क्या है? Ethene. No, it is ethene, right? Okay. Yes. If I am asking you, what is the common name of this compound? Ethylene. Ethylene, बराबर? See, IUPAC is ethene. EN और common name में मैंने क्या किया है? क्या ऐड किया है? YLENE लिखा है. Clear? In place of ENE, I have placed YLENE. See, you have studied, शायद से आपने वहां पे स्टडी किया रहेगा. डाइहालाइड्स पढ़ाया गया था आपको? Yes. कब पढ़ाया था मैं? कब पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया नहीं था? पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया रहेगा जिन्होंने HDA लिया है. नहीं, वो बहुत पहले हो गया, मैं YouTube पे था और वो. मैंने भी बहुत पढ़ाया है 11th स्टैंडर्ड में. डाइहालाइड्स का एक रिएक्शन भी आपसी. ओके फाइन, दैट इज अ पार्ट. डाइहालाइड्स जिनको याद आ रहा है, थोड़ा रिकॉल हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी डाइहालाइड्स का क्लासिफिकेशन आपने कौन से बेसिस पे किया था? Vicinal, geminal. वेरी गुड. विसिनल एंड जेमिनल. तो बाय लुकिंग, सी at the structure whether it is vicinal dialcohol की geminal है. विसिनल मतलब क्या होता है? जो भी फंक्शनल ग्रुप होने दो वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच रहेगा, तो वी कॉल दैट विसिनल. मतलब एडजेसेंट याद रखना है, एडजेसेंट कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए. और जेमिनल आप बोलते हो तो इट मीन्स टू द सेम कार्बन एटम आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए. आपको समझा दोनों में डिफरेंस, विसिनल और जेमिनल में? मैम लिख के लेना है. नहीं, लिख के बाद में लो, बट पहले आपको समझा कि नहीं समझा? जेमिनल में एक ही पे दो रहेगा. See, if I am giving you this example, CH3C, यहाँ पे OH लिख दिया मैंने, यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे H. Now tell me whether it is monohydric की dihydric. Dihydric. Because I could make it out कि यहाँ पे दो OH ग्रुप है, तो definitely it is dihydric, no doubt. बट अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो OH ग्रुप है, यहाँ पे भी दो OH ग्रुप है, so what is the difference between the two structures? If you observe properly, you'll be able to give me answer properly. ऊपर वाला विसिनल है, नीचे वाला Geminal. सेम कार्बन पे हो. आपको क्या फर्क दिख रहा है कि दो OH ग्रुप मैंने बाजू बाजू वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को अटैच किया है. नीचे वाले में मैंने क्या किया है? एक ही कार्बन को दोनों OH ग्रुप अटैच किया है. हाँ मैम. बराबर. तो ऊपर वाला क्या बना? विसिनल. नीचे वाला क्या बना? Geminal. जेमिनल. ओके. जेमिनल मतलब मैम एक ही कार्बन पे दो ऐसा एडजेसेंट. दो एडजेसेंट नहीं दिया, एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच रहेगा. हाँ
वही वो OH भी होने दो, वो एक्सक्लोसियल भी हो सकता है, BR भी हो सकता अलग है, अलग भी चलेगा, हाँ? अलग मतलब वही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। नहीं, सेम फंक्शनल ग्रुप ही चलेगा, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं मैम चलेगा। ये जेमिनल विसिनल का ये एथिलीन से कुछ रिलेशन है क्या? यस, नाम से रिलेशन है, इथिलीन से रिलेशन नहीं है। क्या रिलेशन है मिस? हाँ, तो आई एम टेलिंग यू कि ओके फाइन, विल कम ऑन द टॉपिक। अगर सी अभी यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा फिर? सी इवन इस यहाँ पे भी दो कार्बन एटम्स है, राइट? यहाँ पे भी दो कार्बन एटम्स है, तो मेरे लिए ये भी इथीन वाला ही कंपाउंड है, ये भी इथीन वाला ही, मतलब दो कार्बन एटम वाला ही कंपाउंड बट जेमिनल वाला इथिलीन हो जाएगा है कि विसिनल वाला इथिलीन होगा। विसिनल वाला विसिनल विसिनल वाला यस, विसिनल वाला का नाम बनेगा इथिलीन ग्लाइकॉल। आर यू गेटिंग? हाँ, वो और कॉमन नेम यूज जेमिनल करते हैं। वाला का नाम बनता है इथिलीडीन ग्लाइकॉल। समझा आपको ये दोनों में फर्क? यस मिस। ईडीन आ गया, इथिलीडीन मतलब वो कम। सी इफ आई एम टेलिंग यू इथिलीडीन क्लोराइड ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इथिलीडीन बोला मतलब आपको क्या करना है? एक ही कार्बन को दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, यस और नो? यस यस मिस। हाँ, वो वही मैंने बोला आपको, इथिलीन डाइक्लोराइड ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? बाजू बाजू वाले कार्बन को दो Cl अटैच करोगे। हाँ इज इट राइट? यस हाँ, तो विसिनल आता है, तो विसिनल से ये कॉमन नेम्स आपको याद रखना है, तो ये विसिनल ग्लाइकॉल बनेगा, ये सॉरी ये इथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा, इथिलीडीन ग्लाइकॉल बनेगा। इज इट क्लियर? यस यहाँ विसिनल है करके ENE आता है, जेमिनल है करके LIDENE, इथिलीडीन, अल्कलीडीन और अल्कलीन। ये अपने लास्ट ईयर पढ़ा था टॉपिक में कि जब भी विसिनल होता है तभी अल्कलीन बोला जाता है, जेमिनल होता है तभी। विसिनल के केस में आप क्या बोलोगे? कॉमन नेम आपको कैसे डिराइव करना है? अल्कलीन। और जब भी जेमिनल हो, at that time you're going to use the term alkylidene. Is it clear? Yes, That ma'am. is the difference Yes, ma'am. between the vicinal and geminal. तो ये डायोल है क्योंकि यहाँ पे दो OH ग्रुप है, ग्लाइकॉल क्योंकि एडजेसेंट कार्बन को दो OH ग्रुप आ गया तो ग्लाइकॉल, और यहाँ पे एडजेसेंट है इसलिए इथिलीन ग्लाइकॉल। हेलो मिस। बोलो। मिस ये समझ गया, वो जो मैं आपने ऊपर लिखा है ना इथीन, मैम ये इथीन को हम लोग इथिलीन लिख सकते हैं और इथिलीडीन भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, इथीन का कॉमन नेम इथिलीन है, ओके मिस। इथिलीडीन नहीं। वो कॉमन फिर नेम है ना? जेमिनल विसिनल के केस में मैंने ये अलग बताया। ओके मिस। Okay, fine. Now look at the third example. यहाँ पे कितने OH groups attached है? 3 3. So we are going to call this compound as Trihydric. ट्राई very good. It is trihydric alcohol. Is it clear? See, now you observe properly. यहाँ पे क्या हो गया? तीनों जो OH ग्रुप है मैंने अलग अलग सेपरेटली अटैच किया है कि एडजेसेंट वाले बाजू बाजू वाले कार्बन को ही अटैच किया है? एडजेसेंट बाजू बाजू वाले, राइट? तो तीनों एक साथ आ रहा है। सी जब भी दो बाजू बाजू में आएगा तो आपको क्या बोलना है? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल हाँ, जब भी तीन बाजू बाजू में आएंगे तो यू आर गोइंग टू कॉल इट एज ग्लिसरॉल। इज इट क्लियर? Yes, Yes. ma'am. So what are trihydric alcohol? The compounds in which we have how many hydroxyl group? The compounds containing 3 hydroxyl group are known as trihydric alcohol. The compounds containing 2 hydroxyl groups are known as dihydric alcohol, and the compound containing 1 hydroxyl group is known as monohydric alcohol. Clear? और जब भी 3 से ज्यादा हो जाएगा quantity तो we call it as more. many को क्या बोलते हो आप इंग्लिश में? मोर Poly. more कोई many more वो नहीं, poly. हाँ Polyhydric alcohol. अल्कोहल Is it clear? हाँ. तो तीन से, so what are polyhydric alcohols? The compound containing more than
three hydroxy groups. hydroxy group. Three hydroxy groups are known as polyhydric alcohol. ये चारों टर्म्स क्लियर है आपको? मोनोहाइड्रिक मतलब क्या, डाइहाइड्रिक मतलब क्या, ट्राइहाइड्रिक मतलब क्या और पॉली मतलब? Yes, ma'am. Yes, Poly ma'am. मतलब always Ma'am. you're supposed to write it down as more than 3 hydroxy group, right? यहाँ पे कितने OH group है? 6. 6, right? Usually ये term, ये compound you have in the syllabus, so it is possible कि they may ask you in the exam the structure or they may give you the name. So the name of this compound is sorbitol. What is the name? This is a common name of that compound, sorbitol. इसका कोई लॉजिक नहीं है कि 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप बाजू बाजू में आ गए इसलिए इसको सॉल्व, जैसे ये दो टर्म्स का फैक्ट है कि 2 OH ग्रुप बाजू में आए तो ग्लाइकॉल, 3 आए तो ग्लिसरॉल। 6 OH ग्रुप अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो सॉर्बिटॉल। इवन कॉमन नेम, हाँ, इट इज अ कॉमन नेम। और एक इसका नाम है, कभी कभी दे गिव द नेम एज मैनिटॉल। सिर्फ ये 6 ऑक्सीजन। ये जो अगर 5 आ गया तो 5 है। सी नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू कि 4 आ गया तो उसका नाम अलग अलग कंपाउंड्स बनेगा, अलग अलग नाम बनेगा। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एज सच, बट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दैट इज द होमवर्क फॉर यू। 4, 5, 7, 8 जितना चाहिए उतना मैक्स कहाँ तक करे मैम आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये 4 जो है, आपको ग्लाइकॉल पता होना चाहिए, आपको ग्लिसरॉल पता होना चाहिए, आपको ये सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? सॉर्बिटॉल बोला मतलब कितना OH ग्रुप आना चाहिए? 6। ये दो कंपाउंड्स है ना, इनका नाम क्यों डिफरेंट, मतलब सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल यहाँ पढ़ोगे, इट इज अ टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, तो अब वहां पे बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक है क्या ये साल? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या होता है पता है, एक OH का पोजीशन है ना ऊपर, आउट ऑफ द प्लेन और इन द प्लेन, वो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। क्लियर? एक OH का पोजीशन चेंज होता है इसलिए नाम चेंज होता है। OH ग्रुप तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी 6 ही रहेगा, बट वन ऑफ द OH ग्रुप का पोजीशन लेफ्ट टू राइट बन जाता है, इसके वजह से उसका नाम सॉर्बिटॉल से मैनिटॉल होता है। बट अभी इसका कंसर्न नहीं है, एज फार एज अल्कोहल इज रिलेटेड यू कैन कॉल इट एज सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया तो ये नाम आएगा। इज इट क्लियर? ओके मैम। Okay, if you want you can take it down. If you have any doubt अभी classification of, तो ये जो classification किया था, can you tell me now किसके basis पे किया था अपने classification? अल्कोहल के Based on the number of hydroxyl groups. नंबर ऑफ, और वो कहाँ पे जुड़ते हो? So the कितने? first classification is on the basis of नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, number of hydroxyl group. ग्रुप अटैच्ड। So first classification which we have studied is the classification based on the basis of number of hydroxyl group. If you want to take it down, take it down. मैम वो डाइहाइड्रिक का डेफिनेशन बताओ ना एक बार। Okay, आपने ऑब्जर्व किया स्ट्रक्चर्स? हाँ। Okay, आपको क्या लगता है मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक में क्या फर्क है? नहीं, मैं वहाँ पे when one hydrogen atom, तो 2 और 2 लिखना है कि इंक्लूड नहीं करना है? हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय 2 OH ग्रुप। अच्छा, लिखना है ना? हाँ हाँ, या बोल सकते हो the compounds containing 2 hydroxyl groups are known as dihydric alcohol. But glycol पूछा तो specifically आपको mention करना है the compounds containing 2 hydroxyl groups attached to adjacent carbon atoms. बाजू वाला adjacent word आना चाहिए glycol की केस। मैम अटैच टू 2 एडजेसेंट ना? हाँ, 2 adjacent carbon atoms। अगर एडजस्टेंट नहीं रहा तो मैम नहीं नहीं कहा रहेगा। तो बनेगा ना, ग्लाइकॉल नहीं रहेगा ना वो। नहीं, सब में I'm not getting your question. मैम अगर ऐसा एक ही साथ में ना, अगर एक ही CH2 को 2 रहेगा तो मतलब तो भी वही कहलाएगा वो। ये वाला ना, ये जेमिनल होगा। हाँ, ये विसिनल है। ग्लाइकॉल मतलब विसिनल कार्बन पे OH ग्रुप अटैच मैम, है। ये अपने जेमिनल और वो विसिनल
हाँ मैम, ये कौन मतलब क्या किसका डिवीजन है, किसका पार्ट है? See, ये पार्ट्स मतलब जब भी कोई भी कंपाउंड में ना हाँ दो फंक्शनल, स्पेशली हाइड्रोक्सी ग्रुप होने दो या हलाइड्स वाला Cl, Okay. Br, I, वैसे टाइप ऑफ कंपाउंड्स में ये क्लासिफिकेशन आता है। मतलब बाजू बाजू में दो Cl रहेगा तो वी कॉल इट एज विसिनल, बराबर। एक ही कार्बन को दो Cl अटैच किया तो जेमिनल। टर्मिनल। यूजुअली हैलोजन और हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में ये क्लासिफिकेशन आता है। अल्डिहाइड कीटोन्स में ये जेमिनल विसिनल आएगा ही नहीं। हाइड्रोक्स कौन सा मैम? हैलोजेंस, कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस में आता है, और एक अल्कोहल वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप में ही ये क्लासिफिकेशन होगा, विसिनल और जेमिनल। मैम वो हेलो ग्लाइकोल का बताओ ना एक और बार, क्या लिखने का? मतलब आपको डेफिनेशन चाहिए? हाँ मीन वो मतलब एडजेसेंट आएगा तो ग्लाइकोल बोलते हैं ना। हाँ, उतना ही लिखना है। द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हाँ on the adjacent carbon atoms, या 2 बोलना है तो आप 2 भी, adjacent carbon atoms बोला तो it is understood वो 2 ही होगा। The हाँ compound containing 2 hydroxy group attached to adjacent carbon atoms are known as glycol. ओके। फिर ग्लिसरॉल में बस वो 3 मेंशन कर दिया, हो गया हाँ, ना? 3 मेंशन हाँ। करना है। 3 OH ग्रुप बाजू बाजू में, Ma'am, 3 इस तरह में तो ग्लिसरॉल। Yes. विसिनल का क्या लिखूं कि when 2 विसिनल हाइड्रोक्सी? मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है विसिनल, सिर्फ इतना याद रखो अभी फिलहाल। एडजेसेंट पे जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे, हाँ बराबर। एडजेसेंट कार्बन एटम और ये सेम कार्बन एटम। क्लियर? Yes ma'am, give me a minute. Okay, I will give you a minute. हेलो मैम। ग्लिसरॉल एक एग्जांपल दो ना मिस। In the sense, this is the example of glycerol ना। मिस अनदर एग्जांपल। तो 3 OH एक ग्रुप को अटैच करो, आप चेन बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने प्रोपाइल यूज किया है, अब प्रोपलीन यूज किया है, आप जाके ब्यूटलीन यूज कर सकते हो, पेंटिलीन यूज कर सकते हो। सिर्फ OH ग्रुप एडजेसेंट पे होना चाहिए। मिस एंड व्हाट इन बेंजीन? इन बेंजीन बेंजीन का क्लासिफिकेशन डियर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। 3 OH ग्रुप आएगा तो उसका नाम टोटली डिफरेंट। स्टिल वी आर नॉट इन द बेंजीन क्लासिफिकेशन। अपन किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? अल्कोहल। हाँ, तो जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ वो फिनॉल्स या वो आ जाएगा तभी आई विल लेट यू नो, ठीक है? उसका नाम टोटली डिफरेंट होगा, फ्लूरोग्लुकोल होता है, बट दैट पार्ट विल सी लेटर। ये विसिनल और ग्लाइकोल तो दोनों मतलब एक ही मतलब हो गया ना, बस OH रहेगा तो उसको विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अटैच ना मैम, विसिनल ही ग्लाइकोल। हाँ, मतलब तो वो दोनों ग्लाइकोल का एक भी ही कोई हो गया। मतलब है। यस, बट मैंने जनरल वे से क्यों बताया, क्योंकि आपने हलाइड्स में हाँ भी हाँ स्टडी किया रहेगा, विसिनल हलाइड, डाइहलाइड, सॉरी जेमिनल डाइहलाइड, तो उधर आपको मतलब कोरिलेट होना चाहिए कि विसिनल Okay, टर्म आ गया मतलब एडजेसेंट पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स रहेगा, सेम फंक्शन। हाँ थैंक यू। मैम जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है क्या? जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब अल्कोहलिक कंपाउंड है, ये वाला है ना जेमिनल हम्म। 1,1 यस मैम। प्रोपेन डायोल, सॉरी इथेन डायोल। ये हो गया आपका कंप्लीट। हैव यू टेकन इट डाउन? शुड वी मूव फर्दर? सी स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक में ऑब्जर्वेशन अच्छा रखो, टेक इट डाउन, नोट्स प्रिपेयर करो। जितना बार आप रिएक्शन लिखोगे उतना ज्यादा इजीली आपको मेमोराइज हो जाएगा। ऑर्गेनिक इज टोटली लॉजिक वाला थिंग। समझा तो बहुत अच्छी तरह से समझता है, नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेगा, और एट द एंड ये सब रिएक्शंस बहुत रुलाएगा आपको, क्योंकि हर टॉपिक में बहुत सारा रिएक्शंस है। यूजुअली सी टू इट, यू आर मेकिंग चार्ट्स, प्रिपेयरिंग, साइमल्टेनियसली गो थ्रू करो। एंड ऑलवेज फ्रॉम डे 1, पहले भी आई यूज्ड टू से कि गो थ्रू विथ योर टेक्स्ट बुक, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कोरिलेट विद द टॉपिक विच इज गोइंग ऑन। आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ते ही नहीं हो, न्यू वैसा ही रहता है, एक अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं।
Okay, so मैम जेमिनल का अल्किडिलीन है ना, LIDENE. yes, alkylidene. डन मैम. Okay. So we'll move further. Pehla classification which we have seen was on the basis of hydroxyl group. Clear? Now, second part which we are going to study, which is there in your syllabus, is the classification of monohydric alcohol. We have only the classification of monohydric alcohol in our syllabus. Rest all things we don't have. Clear? See, usually before starting the classification of monohydric, see monohydric term ये आपको सबको clear है what exactly it is all about. Monohydric बोला मतलब कितना OH Yes group? मैम. 1. One. Dihydric बोला मतलब 2 दो. Tri मतलब 3 and more than 3 रहेगा तो polyhydric. So we have been clear with the terms monohydric, di, ये सब classification अपन को समझ में आया on the basis of hydroxyl group. मैम एक डाउट है, ये जो ग्लाइकॉल आपने लिखा है उसके इधर क्या लिखा है? इथिलीन ग्लाइकॉल है ना? Ethylene glycol. I have written the name ethylene glycol. Clear? Yes मैम. Okay, so moving further, the next classification which we are going to do is classification of monohydric alcohol. But उसका classification start करने से पहले we'll see ये last year see अभी आपको सिर्फ organic में यहाँ पे आपको क्या याद रखना है वो वाला part we'll see. Okay. What I have said last year, जब भी कार्बन का चारों बॉन्ड्स होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है कार्बन का? sp3 Very good. So you remember it, right? It is sp3 hybridization. ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3. जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन होता है या कार्बन का डबल बॉन्डेड में कार्बन इन्वॉल्व होता है, तभी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दैट कार्बन? sp2 Very good. It is sp2, right? Even this carbon is involved in double bond, right? sp2 Yes, sp2 only. And when between two carbon atoms, when the carbon atom is involved in triple bond, मतलब triple bond वाला compounds रहेगा, so we call it as sp here it is sp hybridized carbon atom. Even this is sp hybridized carbon atoms. तो ये पार्ट आपको क्लियर है? yes हाँ, जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन एटम्स का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही पार्ट अपन कैरी फॉरवर्ड करके क्लासिफिकेशन देखने वाले. अगर ये क्लियर नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू क्लासिफाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. इज इट क्लियर? सो व्हेन द कार्बन एटम has single bond, yeah, when it is involved in single carbon bond atoms, it is known as sp3 hybridized carbon atom. We are talking the hybridization state of carbon. When it is involved in double bond, it is sp2, and when it is involved in triple bond, it is known as sp hybridized carbon atom. मैम अगर टेट्रा बॉन्ड आ गया तो? टेट्रा आता है क्या डियर? नहीं. तो लेकिन अगर आ गया तो कैसे आएगा? क्या कंपाउंड बनेगा? नहीं मैम, अगर खाली C और C में बनेगा 4 बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट होता है? आज तक तो नहीं देखा. नहीं देखा ना, तो एग्जिस्ट नहीं होता. ओके मिस. ओके, वो मैम थर्ड वाला ओनली SP है ना? हुआ भी, SP हाँ hybridized. SP है, हाँ SP है. हुआ भी ना तो वो उसका अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा. sp3, sp2, sp. Is it clear? ये terms. So on that basis अभी Yes. अपन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखेंगे. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
is further classified into two types depending, ये किस पे डिपेंड करता है? Depending on hybridization state of carbon atom attached to OH group, hydroxyl group. Clear? So on that basis, the classification is if the carbon atom या the OH group can be attached to CsP3. मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे मैंने क्या लिया है? sp3. हाँ, the carbon atom hybridization is sp3OH. Clear? Yeah, monohydric alcohol can even be classified under the type carbon sp2 वाला hybridization और उसको वो OH group attach है. Clear? तो दो classification we are going to study. एक क्लासिफिकेशन रहेगा जहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो. सी इट कम्स अंडर द कैटेगरी मोनोहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप ही रहेगा. बट यहाँ पे आपको अभी स्पेसिफिकली क्या देखना है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर sp3 रहेगा और ये केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 रहेगा. मतलब OH ग्रुप जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखना है, उसके बाजू वाले का नहीं देखना है. इज इट क्लियर? अगर ये केस में फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड सेकंड वन दिस. पहला इतना नोट डाउन करो सो आई कैन टर्न द पेज. ये सब कंसेप्ट इतना आपको समझा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का? यस मैम. SP का नहीं है। मैम हाँ, एसपी का क्यों नहीं देखेंगे क्लासिफिकेशन? आई डिडंट गेट यू. मैम वो एसपी वाला जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी तो लग सकता है ना? उसका भी ओनली वी हैव sp3OH वाला, sp2OH वाला है नहीं क्या? और SP में बन सकता है ना, लेकिन उसपे भी OH लग के. यस बन सकता है. हाँ हेलो, क्या मिस वो एसपी का क्या बोला आपने? नहीं, we don't have this in the syllabus. We are going to only study the hybridization state of carbon atoms involving sp3 वाला और sp2 वाला. और एसपी वाला? sp वाला नहीं है, we don't have it. ओके मिस. डन मैम. Okay, should I turn the page? मिस एक बार जूमिंग करो ना. हेलो हेलो मिस. बोलो. मिस एक बार जूम करो ना थोड़ा सा. दिख रहा है? हाँ मिस. हाँ मिस. हो गया मिस. ओके फाइन. फर्स्ट वाला अपन वो देखेंगे CsP3OH वाला. क्लियर? ओके. First, tell me the examples which I have given. Right? In this case, कितना OH group attach है? 1 सोलो. In this case, 1. 1 one. Then in this case we have 1. So पहला तो ये हो गया तय, ये मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, पॉली है कि ट्राई है? मोनो. हाइड्रिक है. So all the examples belongs to category monohydric alcohol.
It is clear, right? If we are going into the hybridization state, अभी आपको किसका see अभी ये जो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, right? OH ग्रुप जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वही कार्बन का CH2 का यस सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या है? sp3 वेरी गुड, इट इज sp3, right? So it belongs to CsP3OH wala hybrid group, right? Classification. Okay. Now look at this. In the second structure, the OH group is attached to which carbon atom? To the middle carbon atom. Yes or no? Yes. We know it is monohydric wala, right? But अभी भी इसका भी hybridization state क्या है? sp3 sp3, right? Okay. And what about this carbon atom? OH group यहाँ पे जो carbon atom, it is monohydric. OH group directly ये carbon atom से attached है. So even it is sp3, right? Now observe all the structures properly and tell me what is the difference then. position Primary, secondary, tertiary carbon. Very हाँ. See अपने last year study किया था primary carbon atom. What do you mean by primary carbon atom? फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे डायरेक्टली अटैच्ड है। नहीं प्राइमरी कार्बन मतलब क्या? वो कार्बन एक ही कार्बन से atom attached to one single carbon atom या one carbon atom, right? If I am Yes. telling secondary carbon atom, तो आप क्या बोलोगे? carbon attached to two more carbon. two टू और मोर नहीं बोल सकते भैया, carbon two ही बोलना ऐसा पड़ेगा। आएगा Carbon atom carbon attached to two carbon atoms, right? Single पे होगा तब भी प्राइमरी बोलोगे या दो कार्बन एटम से अटैच। next is tertiary Yes, the next is tertiary carbon atom. I don't know what is tertiary carbon atom. carbon atom attached तीन to कार्बन से three carbon atom. Three carbon carbon atom से atoms. attached है। तो अभी पहला एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल में ये वाला जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन से अटैच primary carbon है Yes, it is primary carbon. So we are going to call it as which alcohol? 1 degree alcohol. या 1 we call degree. it primary alcohol. दोनों नाम उसका चलता है. 1 degree मतलब primary होता है, primary ही मतलब 1 degree होता है. Is it clear? See, now look at this carbon. ये carbon कितने carbon से attach है? दो. So we are going to call it as 2 degree alcohol very good. We are going to call it as 2 degree alcohol. या बोला जाएगा secondary alcohol. Is it clear? Yes. What about this? 3 degree alcohol. tertiary alcohol Yes, it is tertiary alcohol. Yeah, 3 Tertiary. degree alcohol. Because it is attached to, this carbon is attached to how many carbon atoms? 3 carbon atom. 3 carbon atoms. आपको कार्बन फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है उससे उसका डिग्री पता चलता है। 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, 1 से सिर्फ अटैच है तो 1 डिग्री। ये पार्ट क्लियर है आपको? At least let Yes, me know ma'am. yes or no. Okay, fine. ये पार्ट क्लियर है, right? See, before moving further, I will draw one structure here. चलो, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन सा फॉर्म है? bond line वेरी गुड। Bond line. Okay. Now tell me, can you tell me the hybridization state of this carbon? मतलब यहाँ पे एक कार्बन एटम है, बराबर? हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे? 2 sp2 H2, यहाँ पे CH. Okay, हाँ. क्या होगा यहाँ पे hybridization state of ये कार्बन क्या है? sp2. sp2. What about this carbon?
sp2 sp2 होगा because it is involving in double bond. But what about this carbon? sp3 We are mainly concerned about this carbon because अपना जो functional group है जिससे attach है वो अपने को देखना है कौन से कार्बन से अटैच है. So it is sp3 वाला कार्बन. What about this carbon? ये वाला कार्बन. sp3 Even this is sp3. Okay. What about this वाला ये वाला कार्बन? sp3 It is sp3. तो पहले बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये मोनोहाइड्रिक को बिलोंग करता है. हाँ एक ही Yes. sp3 कैसे आएगा मैम? थर्ड वाले का नहीं समझ रहे. सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इन्वॉल्व है ना. 1 2 3 4. समझा आपको? सी लुक एट दिस कार्बन. ये समझा. सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना सभी जगह से तो वो sp3 है. हाँ, यहाँ मैम. पे डबल बॉन्ड में होता तो sp2. क्लियर? यस. हाँ तो इट इज मोनोहाइड्रिक वाला अल्कोहल. क्लियर? एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज sp3. ये क्लियर हो गया. तो अभी सी इफ यू आर ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी मैंने क्या किया है जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है उसके बाजू वाले कार्बन को OH ग्रुप अटैच किया है. मैंने उसको डायरेक्टली अटैच किया है क्या? नहीं, बाजू वाले कार्बन को OH ग्रुप अटैच किया है. इवन इन दिस केस मैंने क्या किया डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को ही OH ग्रुप अटैच किया है. इन दिस केस भी डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को OH ग्रुप अटैच किया. जब भी ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया सी इट इज नॉट फॉर अल्कोहल फॉर फंक्शनल ग्रुप्स. इवन हैलाइड्स के केस में आपने देखा रहेगा अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको जहां पे भी दिखाई दिया जहां पे डबल बॉन्ड है और उसके बाजू वाले कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड वी कॉल एज अलाइल कंपाउंड. क्या बोला जाता है उसको? अलाइल. सो दिस कंपाउंड मैम एक मिनट रिपीट करो ना, ये वाला क्या बताया आपने? Okay, I'm repeating it out. Allyl alcohol, allylic alcohol. See, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा at that time we call it as allyl and the name becomes as allylic alcohol. Is it clear? यहाँ पे Cl भी हो सकता है वो allylic क्लोराइड बनेगा. Br होगा तो allylic ब्रोमाइड होगा. ये हैलोजन मैम डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन के अटैच. एग्जैक्टली बगल वाले. ऐसे दो कार्बन ऐसा नहीं होगा स्ट्रक्चर. एक कार्बन यहाँ पे छोड़ा दूसरा कार्बन और फिर जाके फंक्शनल ग्रुप तभी उसको अलाइलिक बोलोगे क्या? नहीं. डबल बॉन्डेड के एग्जैक्टली बाजू वाले कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा. बगल वाले कार्बन को एडजेसेंट कार्बन को एडजेसेंट राइट functional group attached है तो we call it as allyl and the compound become allylic alcohol. Is it clear? Yes ma'am. मिस वो हेलो मिस बोलो. मिस वो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के पास और कुछ भी अटैच हो सकता है ना? हो सकता है. तो अभी वही that is my next ये question. If you observe this properly all the three structures क्या डिफरेंस है फिर? अलाइलिक ये मोनोहाइड्रिक भी हो गया ये CH3OH भी हो गया तो डिफरेंस क्या है तीनों में? मिस वही फर्स्ट वाले में OH के साथ कुछ भी अटैच नहीं है और सेकंड वाले में फर्स्ट वाले अटैच्ड है और थर्ड वाले में दो अटैच्ड है. हाँ तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताओ क्या होता है जब भी कार्बन एटम एक ही कार्बन को अटैच होता है तब? So this is primary allylic alcohol. सेकंड वाला क्या है? सेकेंडरी allylic alcohol. सेकेंडरी allylic alcohol. And third is allylic alcohol का भी further classification होता है प्राइमरी में सेकेंडरी में and the last one we have tertiary. 3 degree. Are you getting? Yes ma'am. Yes. अलाइल वाला फैक्टर समझ में आ गया. हमेशा ये याद रखना है डबल बॉन्डेड के एग्जैक्टली बाजू वाला बगल वाले कार्बन को ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है. इन द टर्म्स ऑफ इंग्लिश वी कॉल इट एज टू द एडजेसेंट कार्बन राइट. इसको एक नया टर्म क्यों दिया ऐसा अलाइलिक? नया टर्म क्यों दिया मतलब इसको स्पेशली अलाइलिक अल्कोहल क्यों बताया? तो वही तो उसको स्पेशली क्यों अलाइलिक अल्कोहल बता रहे हैं. उसको कॉमन नेम्स बेटा डिराइव कर रहे हैं ना अपने
तो कॉमन नेम्स में ऐसा उन्होंने फाइंड आउट किया कि जब भी डबल बॉन्डेड वाले बाजू वाले कार्बन को है तो उसको अलाइलिक ही बोलना है, आपको स्टडी करना है। डिफाइन कर दिया है। क्लियर? तो ये पार्ट क्लियर हो गया आपका। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। Yeah. Allylic is totally clear for you. Any doubt Yes, in ma'am. allylic carbon? No. Okay, fine. So we will move further. मैम 2 मिनट रुको ना प्लीज। Okay, you'll take it down. ठीक है, I will give you a minute. मैम वो इसे रखो ना घुमा के। थैंक यू। Okay. मैम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, वैसे ही रखो। See, यहाँ पे इतने सारे बच्चे, सबका अगर मैं ये करते रहूँ तो मैं कैसे ये I will see to it कि next class में वो थोड़ा मैं उसको ये करूँगी adjust. हाँ बस। मैम ये पूरा एक पेज में ऐसा लाओ ना, थोड़ा जूम आउट करो ना मैम। दुबे जी पर लिख लेने दो। बस मिस एक मिनट मैम, एक मिनट। यस मैम, आप कुछ भी करो, उसका हो गया। I hope everyone have completed. प्लीज 2 मिनट। Okay, fine. मैम प्लीज थोड़ा सा रुको। Okay, fine. Can we move further? एक छोटा सा ही पार्ट है अभी CSP so that classification complete हो जाएगा ये लेक्चर में। हेलो मैम। बोलो। मैम उसको एक बार स्पेल आउट करो ना। अलाइलिक क्या लिखा है? में एलिलिक भी कोई बोलता है, कोई उसको अलाइलिक बोलता है। एलिलिक भी आप बोल सकते हो, अलाइलिक भी बोल सकते हो। राइट क्या है मिस? राइट आपने हाँ pronounce वही राइट। दोनों राइट है। It depends upon person to. I am spelling it as Ali. अभी आप देखोगे तो usually it is अलीलिक। बट कोई उसको एलिलिक भी बोलते हैं, अलाइलिक भी बोलते हैं। इट्स अप टू यू। मेन क्लियर होना चाहिए। क्लियर? इसमें कोई डाउट है क्या? मतलब अलाइलिक कार्बन में आपको? नो मैम। नो। फर्दर okay. See students, you can observe here what I have done. सभी स्ट्रक्चर्स में कॉमन बेंजीन रिंग है। yes or no? अल्फा नहीं बीटा पे नहीं, बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है तीनों स्ट्रक्चर्स में। यस मैम। इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है। ठीक है? आपको एक बेस कंपाउंड पता है विच यू हैव स्टडीड इन ये 11th स्टैंडर्ड एरोमेटिक में, मैंने इसका नाम बताया था तभी। हाँ मैं टोलिन। एनिलीन। एनिलीन नहीं है ये, क्या है ये? टोलिन। टोलिन। बेंजीन मिथाइल का कॉमन है में टोलिन and this name is even accepted in IUPAC। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक H को रिप्लेस किया है OH से। बराबर? yes or no? यस। This is ये मोनोहाइड्रिक है कि नहीं है? है। हाँ Okay. मोनोहाइड्रिक। What about this structure? मोनोहाइड्रिक है कि नहीं है? मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक। ये तीनों टर्म्स अपना क्लियर हो गया कि इट इज मोनोहाइड्रिक। क्लियर? यस मैम। Now tell me hybridization state of this carbon atom क्या sp3। होगा? sp3। वेरी गुड। और जो रिंग में इन्वॉल्व है उनका क्या होगा?
उनका sp2 है। sp2 डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है ना, इसलिए sp2 वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैम। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3 वेरी गुड। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3 क्लियर? ये टोलीन होता है और दूसरा एक कंपाउंड होता है सी। जब भी वी आर ड्राइंग इट बेंजीन रिंग, बेंजीन को जब भी अपन CH2 ग्रुप अटैच करेंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग को CH2 ग्रुप अटैच रहेगा, तभी वी कॉल इट एज बेंजाइल। व्हाट वी कॉल दैट कंपाउंड एज? benzyl Yes. So the next classification, see यहाँ पे भी CH2 ही है, वो CH2 का हाइड्रोजन अपन रिप्लेस करते जा रहे हैं। The base is this only. So the classification comes under benzylic या benzylic alcohol. Right? हेलो मिस। बोलो। मिस ये अल्काइलिक अल्कोहल के बाद ये क्या हुआ मिस, एक बार फिर से बता दो ना। अलाइलिक के बाद, यस मिस। अलाइलिक के बाद वी आर स्टडिंग द कैटेगरी बेंजाइलिक अल्कोहल। बट बेंजाइलिक अल्कोहल का मीनिंग समझने से पहले ये समझो कि बेंजीन को जब भी CH2 ग्रुप अटैच रहेगा, उसके बाजू में कोई भी फंक्शनल ग्रुप होने दो, इट डजंट मैटर टू अस, बट बेंजीन रिंग को CH2 ग्रुप अटैच रहेगा, वी कॉल इट एज बेंजाइल। सी इट कम्स अंडर मोनोहाइड्रिक sp3 वाला ही कैटेगरी। सिंस इट इज बेंजाइल, वी आर गोइंग टू गिव द नेम एज बेंजाइलिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। क्लियर? मैम वो CH2 ही आएगा ना? कौन सा? हाँ हाँ समझा मैम, समझा। एक एक हाइड्रोजन आगे रिप्लेस हो गया। अभी इसमें हाँ। भी, हाँ, अगर मैंने पूछा यहाँ पे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल फर्स्ट वन है, सेकंड वन है, थर्ड वन है? फर्स्ट वन है। वेरी गुड। फर्स्ट वन इज 1 डिग्री वाला, सेकंड वन इज 2 डिग्री वाला। आर यू ऑब्जर्विंग? 2 यहाँ पे डिग्री वाला C है, एक दूसरा ये C है, इससे अटैच है, बराबर? तो दिस इज 2 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट दिस वाला C? 3 डिग्री वाला वाला। तो बेंजाइलिक अल्कोहल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इज इट क्लियर? यस मिस। मिस यहाँ पे टोलुइन क्यों लिखा है आपने ये बेसिक मैंने बताया कि टोलिन के एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते जा रहे हैं OH ग्रुप से और मिथाइल ग्रुप से। दिस इज द बेस, टोलिन है। क्लियर? सी सो Yes, द ma'am. कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पे Cl ग्रुप अटैच होता तो आप क्या बोलते हैं? बेंजाइल, benzylic बेंजाइल क्लोराइड। क्लोराइड। chloride अटैच होता तो बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड। ये समझा आपको? yes हाँ, पर अगर इसका अगर कॉमन नेम देखा जाए ना, तो सॉरी IUPAC नेम, बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट में आता है, राइट? सी मेन कंपाउंड क्या था अपना? मिथाइल अल्कोहल। नहीं, टोलिन है, ये पार्ट अभी भूल जाओ। CH3OH रहेगा, राइट? मेन। अभी मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसको बेंजीन दे दिया, तो बेंजीन इज कमिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट हियर। तो बेंजीन जब इस सब्स्टिट्यूएंट में आता है, वी कॉल इट एज फिनाइल, इफ यू रिमेम्बर इट। मालूम कैसे पड़ेगा मिस कि मतलब बाद में उसको ऐड किया है? किसको? बेंजीन को बाद में ऐड किया, पहले वो बाद में ऐड CH2OH किया है था। वो मैं आपको बता रही हूँ कि बेंजीन, इट इज अंडरस्टूड ना डियर कि यहाँ पे CH2OH है, बेस क्या रहेगा? मिथाइल अल्कोहल ही हो सकता है। एक ही हाइड्रोजन उसका रिप्लेस हो गया है ना बेंजीन से। हाँ आपको मैम स्ट्रक्चर अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक CH3OH था, उसका एक H के जगह पे मैंने बेंजीन दिया। बेंजीन जब इस सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो वी कॉल इट एज फिनाइल। तो इसका नाम क्या बनेगा? कैन एनीवन टेल मी? phenyl alcohol Yes, but more precisely it will be phenyl methanol. ये अपन देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, बट इतना अभी तक जो पढ़ाई की आपको समझा? मैम पूरा समझा। Okay, Yes, you have ma'am. any doubt in this?